Hello students, welcome to CATCH25 Science Academy YouTube channel. This is Preetesh Mishra and this video is especially for students of चेतना classes, class 10 students SSC board. Now students, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आई एम वेरी श्योर. प्लस हम जो ये छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, these videos are going to be very helpful to you people just before your board examination. है ना. इसके पहले मैंने चैप्टर 8 पे आपको वीडियो भेजा था और हमने एसएससी के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट 4-5 ईयर्स में, वो सारे मैंने एक एक करके पेपर वाइज ईयर वाइज मैंने सॉल्व किया है और ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स. उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं. सो एज एंड व्हेन यू गेट टाइम, इवन बिफोर जस्ट बिफोर योर एग्जाम, से फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर बिफोर योर एग्जाम, अगर आपको कोई चैप्टर का रिव्यू लेना है, सो यू कैन गो ऑन टू आवर चैनल एंड यू कैन वॉच everything that is there. Okay, so चेतना क्लासेस के बच्चे लोग, let us start with class 10 का science 2 chapter number 10 which is disaster management. Okay, now 2020, talking about year 2020 is the year which symbolizes this entire chapter students. Disaster management अगर आपको कभी सीखना था तो यही वो साल था. यही वो साल 2020 was the year where not only India but entire world had to manage the huge disaster which was COVID. So इस चैप्टर में let us go through every concept कि disaster कितने types के होते हैं, disaster management होता कैसे है, किस किस लेवल पे कौन कौन काम करता है, and we as member of society what should we do or what we can do to मेक श्योर कि डिज़ास्टर का असर बहुत ज़्यादा ना हो हमारे लाइफ में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. सबसे पहले लेट अस डिफाइन डिज़ास्टर. सो यूनाइटेड नेशंस defines disaster as sudden event. Now sudden word is very important. It is never a planned disaster. Sudden event that leads to huge loss of life and property. If I have to classify disaster, then we can classify it as natural disaster, man-made disaster and catastrophic disaster. Catastrophic disaster means, students, simple example is COVID, where huge loss of life happens and life is impacted on a very high scale, very severe scale. So natural disaster के examples देख लेते हैं. example है flood, then wet and dry famine, cyclones, earthquakes, etc. Then we come to man-made disaster. Man-made disaster means what students? जहाँ पे human beings natural resources को जाने अनजाने destroy करते हैं, जिसके वजह से everything culminates into, it ends up as a disaster. Okay, then catastrophic disaster में you have varieties of variety of disasters. COVID-19, as I said, is the perfect example. Alright, apart from this students, as I said, you have to focus on two main words, that is sudden as well as huge. So these two words hold very high importance when I have to define disaster. It is a sudden event and it accounts for very huge loss of life and property. So financial crisis तो आते ही हैं इसके साथ साथ. Now I want to focus on this sudden event students because it is sudden, hence it cannot be prevented. Although इस चैप्टर में हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि which are the techniques by which we can minimize the effects of disaster on human life, but overall also अगर हम देखा जाए कि can I prevent any disaster? No, there is very less chance how with the help of which we can prevent a disaster, but surely we can make sure कि उसके जो after effects हैं वो minimize हो जाए. So speaking about types of disaster students, these are number of disasters which we have to study in this chapter. I would like to repeat this कि मैंने जितने भी ये सारे पैराग्राफ एंड वर्ड्स लिए हैं, सारे पोस्टर्स लिए हैं, these are all from SCC टेक्स्ट बुक. सो ये कुछ भी बाहर से नहीं है. आप as it is you can copy this down. This is there in your textbook also, so you can without any hesitation refer to all the contents because ये कुछ भी बाहर का नहीं है. Okay, so let us start with the first type students. The first type is geological. Geophysical में we are coming to geological. Geological में सबसे perfect example is earthquake,
Okay, next I'll come to atmospheric students. Atmospheric में snowfall, cyclones, flood, etc. etc. Then it comes to biological disasters. Biological disasters में concerned with those which are concerned with plant life. तो forest fire सबसे perfect example है. Then animal life, infections, virus, COVID will fall into this category, students. Type of disaster, biological. In that also which type? Animal, where viruses, bacteria, etc. 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 can be grouped into. Next, man-made disasters में you have भोपाल गैस ट्रेजेडी. ये हर बार सिलेबस में आता है, आपको ये पढ़ना ही होता है इसके बारे में. इफ़ नॉट इन स्कूल देन यू लर्न दिस इन कॉलेज. 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़ोगे. भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस लीक हो जाने की वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैम्पर हुई थी. सो दिस हैज़ टू बी अ मैन मेड disaster, although unknowingly, but yes, surely. Okay, next is international disaster, where again man-made. It is bomb blast, terrorist attacks, where it hampers the day-to-day life. Also resources, financial crisis then creeps into the society. आपका life जो है वो काफ़ी it will face lots and lots of challenges, emotional also, financial also, and in day-to-day routine also it impacts you immensely. So all these disasters students, इनका इफेक्ट क्या होता है वो अब देखते हैं. So what are the effects? First of all, it is loss to property and life, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. Okay, and because of loss in property, loss of life, overall it affects the society. Also, अगर हम लाइफ की बात करें, so if it doesn't kill the person, it will definitely handicap that person or the society overall, economically, socially, cultural wise, politically. अगर politics suppose जो government है जो govern कर रही है country को, if it is not that strong, then obviously leadership qualities अगर ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर अपन बात करें कोविड का, so कोविड में नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छे से हमको लीड किया. इनफैक्ट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स एट अ very fast rate. It is even supplying the vaccines, it is even exporting these vaccines to different countries, its neighboring countries. So in that respect we have been very proactive. So we need such a government which should be there for the people every time. It should back the people, it should stand by the people. Then coming to term, students, long term, short term. Disaster can again be long term disaster, it can be short term disaster. Okay, next is effects of disaster. Moving on, going more into the details of effects of disaster, students. The first effect is economic. Obviously, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई disaster आएगा, simple example is कोविड, देन महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिकली हमको चैलेंजेस आएंगे, जॉब लोगों के नहीं रह गए, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट, इट वॉज कम्प्लीट लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत लोगों के जॉब गए, बहुत सारी कंपनियाँ क्लोज हो गई, कंपनीज क्लोज हो गई, तो पैसे नहीं आए, पैसे नहीं है तो हाउ कैन आई लिव अ वेरी स्मूथ लाइफ. सो हेंस आई कैन से इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं डिज़ास्टर में. देन सोशल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, इसमें तो सबसे बड़ा सोशल चैलेंज था. व्हाट वाज द सोशल चैलेंज? सोशल डिस्टेंसिंग. सो सिमिलरली डिज़ास्टर अगर ये भी हो, या सोशल डिज़ास्टर अगर अपन बात करें कि इमोशनल वेलबींग कितना होता है, इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक अगर हो तो इट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर. सो उसका इफेक्ट क्या होता है, सोशली वी आर वेरी मच टेरिफाइड, है ना. जब ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो बहुत लोग ट्रेन में जाना, बहुत लोगों ने छोड़ दिया उसके बाद से. सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर फेट, ऑन योर डेस्टिनी. बट अगेन हमारे मन में एक शंका आ जाती कि नाउ आई विल नॉट ट्रैवल विद ट्रेन, यहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है. सो दैट इज़ social arrest which happens because of disaster. Then we have students environmental. environment में इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप डिज़ास्टर ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो अगर गैस लीक होने की वजह से एनवायरनमेंट में फैलेगा, सो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एंटायर इकोसिस्टम गेट्स इम्पैक्टेड, including plants, including aquatic animals, including birds, including herbivorous animals, carnivorous animals, everyone will be impacted. So that is the effect of disaster again on environment. Next coming to administrative professional. इसकी जो मैंने आपसे बात की regarding government, अगर government अच्छा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है, अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में अगर हम लेते हैं तो इनिशियली इट वाज अ ह्यूज चैलेंज टू टैकल एंटायर कोविड पैंडेमिक.
सो देयरफॉर देयर वाज मिसहैप, कम्युनिकेशन एरर था हर जगह। आपको ये नहीं पता कि किस गवर्नमेंट में किस हॉस्पिटल में कितने फ़ीस हैं, कितने बेड चार्जेस हैं, कहाँ बेड खाली हैं जहाँ में हम अपने रिलेटिव्स को एडमिट कर सकते हैं। ये पूरा सब कुछ जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो मिसहैप क्रिएट हो गया स्टार्टिंग में, इट शोड दैट वी वर नॉट रेडी। दैट इज़ वाई आई डिफाइन डिजास्टर एज सडन इवेंट। Obviously, nobody was ready for COVID, but this is where we will learn in the later slides, students, how we should be prepared overall, because we saw countries, there were many countries who handled this quite well, including India. इंडिया ने भी जो लोगों का अंदर आना हुआ वापस कंट्री में, आउटसाइड इंडिया से जो लोग अंदर आ रहे थे, बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए, जहाँ पे बाहर के लोग जो आउट ऑफ इंडिया से वापस अपनी फैमिली के पास आना चाहते हैं उनको लिमिटेशंस रख दिया गया उनके ऊपर, एंड देयर वाज प्रॉपर traveling restrictions put on them, then quarantine period, everything. This was all students administrative, ठीक है। बट देन अगेन चैलेंजेस और क्या क्या आते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोलैप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां हमने कोविड में देखा कि लोग दूर दूर जो उनके गांव है वहाँ पे चल चल के जा रहे थे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, ट्रेन्स बंद हो गई थी, है ना। अब ये जो पैदल चल चल के लोग गए अपने गांव, उसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़, खाना नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। इट वॉज इवन रिपोर्टेड कि मैनी डेथ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, एंड मूविंग ऑन टू पॉलिटिकल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे। इफ़ पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, देन ऑब्वियसली कन्फ्यूजन क्रीप्स इन टू द पॉपुलेशन, कन्फ्यूजन, पैनिक, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। Medical facilities, this is the most important effect of disaster, students, where if disaster impacts the medical branch of society or medical department of entire society, medical division of society, जो कोविड पैंडेमिक में हुआ, कोविड पैंडेमिक में मेडिकली ऑल्दो डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने बहुत सपोर्ट किया, बट स्टिल शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ ज़रूर महसूस हुई बिकॉज ऑफ सच ए ह्यूज स्पाइक इन दी COVID affected patients. So that was again another effect of disaster which took toll on the medical facilities present in India, students. Now nature and scope of disaster, अभी आपने क्या देख लिया, you defined disaster, हमने disaster को classify कर लिया students, हमने disaster के effects भी देख लिए। अब आपको क्या देखना है कि disaster में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ पाते हैं, how can I segregate disaster. So these are the points, again these points are not there in your textbook. आपके टेक्स्ट बुक का पॉइंट्स मैंने एज इट इज़ नहीं उठाया स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल लुक मैंने आपको दिया, ओवरऑल स्कोप बताया कि डिज़ास्टर में क्या क्या हो सकते हैं, प्री डिज़ास्टर फेज, देन वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहैबिलिटेशन, ट्रांजिशनल, रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, दिस आर ऑल फेजेस ऑफ डिज़ास्टर। हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, ओनली दीज 3 फेजेस हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, इमरजेंसी फेज, रिहैबिलिटेशन फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल फेज, and reconstruction phase. So let us see these phases one by one. So first phase during disaster is emergency phase. इस फेज़ में स्टूडेंट्स क्या होता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं साइट पे, मेडिकल असिस्टेंस होता है प्रॉपर्ली, फर्स्ट एड फैसिलिटी होती है, रीस्टोरिंग ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सपोज़ जैसे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या फ्लड ऐसा कुछ आ गया है, सो पहला तो यही होता है कि कम्युनिकेशन पहले रीस्टोर किया जाए ताकि हेल्प मांगी जा सके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिस्पेक्टिव गवर्निंग बॉडीज से। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हैपन। सपोज कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, सो वहाँ पे रिमूविंग पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, फ्लड वाले एरिया से लोगों को बचा के निकालना, जो आर्मी नेवी के भी पर्सनल वहाँ पे आ जाते हैं। सो ऑल दिस कैन बी इंक्लूडेड इन emergency phase. That means when the disaster strikes. Okay, then it is rehabilitation phase, also known as transitional phase. So students, transitional phase means what? This is the phase where disaster अब just हो चुका है, अब भी just हुआ disaster. So then what? अब क्या हम करेंगे? अब हम वहाँ से जो डेब्रीज हैं, जो सपोज अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है या ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट, आप फोटो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ऐसा कुछ हो गया, सो मैं वापस वहाँ से उन चीज़ों को वहाँ से हटाऊँगा, उन जो डैमेज चीज़ें हैं उनको साफ़ करूँगा। आई विल रीस्टोर द नेसेसरी फैसिलिटीज़ विच हैज़ टू बी गिवन टू द पॉपुलेशन करंटली लिविंग देयर और टू द सिस्टम विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ओवर देयर। जो सिस्टम वहाँ पे हैम्पर हो गया इसकी वजह से, उसको पहले मैं चालू कराने की कोशिश करूँगा। रोड्स की रिपेयरिंग, अगर रोड ख़राब हो गए सपोज फ्लड के केस में, सो हम रोड्स को फटाफट रिपेयरिंग करना शुरू कर देंगे। एंड वेरियस NGOs विल स्टार्ट offering monetary help as well as government
तुरंत आपने ये सुना होगा न्यूज़ पे कि गवर्नमेंट हैज़ release this much money for this state which has been affected by flood. So this is that release of money, release of help, monetary help by the government will fall under this phase, students. This is what happens in this phase. Next, coming to reconstruction, and now the execution happens. सो अब एक्सिक्यूशन होगा इस फेज़ में, जहाँ पे रोड बनना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे जो बिल्डिंग है सपोज गिर गई थी वो बिल्डिंग बनना शुरू हो गई. तो ये फेज़ थोड़ा स्लो चलेगा, बट येस दिस इज़ दी, यू कैन से कि अब डिज़ास्टर जा चुका है, हमसे दूर जा चुका है, एंड नाउ लाइफ इज़ ग्रेजुअली कमिंग ऑन टू द ट्रैक. जो एसेंशियल चीज़ें वो चालू हो चुकी हैं, जो बाकी चीज़ें उसका फर्निशिंग चालू है जिन पे असर हुआ था डिज़ास्टर का. ऑल राइट, देन फ्रॉम डिज़ास्टर वी क्लासिफाइड डिज़ास्टर, देन उसके इफेक्ट्स हमने पढ़े, हमने उसके फेजेस देख लिए. नाउ लेट अस गो इनटू द मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स. सो डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाए? एज आई सेड, इट इज सडन एंड ह्यूज लॉस टू सोसाइटी, एन इवेंट विच इम्पैक्ट सोसाइटी टू एट अ वेरी वेरी हाई लेवल. बट येस, we should always be prepared, students, because science is there with us and our will, our power is there with us. So let us start and let us understand कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं as a member of society. So preparation, this is very very important. Okay, first let me read the management ka goal. So disaster management is either prevention of disasters or making arrangements to face it, or at least achieve the abilities to face it. So let us be prepared in some or the other manner कि एटलीस्ट हम कुछ तो अपनी सोसाइटी को बचा पाए. डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है तो हम कुछ तो उसके लिए कर पाए. सो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे तैयारी करें, बताते हैं आपको. ठीक है, सो पहला आप हेडिंग देख सकते हो, बॉक्स, पहला बॉक्स प्रिपरेशन, येलो कलर में लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे जो बॉक्स दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन. ठीक है, प्रिपरेशन मतलब क्या, चेक करते हैं. प्रिपरेशन इज प्लानिंग. Plan is prepared to minimize the destruction in any disaster if occurs. Again I am saying there is no blueprint. हमको नहीं पता कि कल अर्थक्वेक आने वाला है. सो मैं ऐसे नहीं प्लान करूँगा कि चलो अर्थक्वेक आएगा, चल तू वहाँ रेडी रहना, तू वहाँ रेडी रहना, हाँ तुम लोग वहाँ चले जाना, तुम लोग वहाँ चले जाना, तू उसको बचा लेना. पहले से जाके 4 बजे सुबह से उनको उस फैमिली को घर के बाहर निकाल दे बिकॉज अर्थक्वेक आने वाला है. आपको ऐसी जानकारी नहीं रहने वाली. ठीक है, बट स्टिल जस्ट प्रिपरेशन है ना. प्रिपरेशन हम कैसे करें, जैसे स्टूडेंट्स अपन एग्जाम में जाते हैं, हमको थोड़ी पता है एग्जाम पे पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बट स्टिल यू आर प्रिपेयर्ड, राइट. जो आपका स्कोप है कि आज का पेपर है अलजेब्रा, सो आप अलजेब्रा तो एटलीस्ट पढ़ के जाओगे अच्छे से, राइट है. आज का पेपर है साइंस 1 या साइंस 2, आप उसको अच्छे से एटलीस्ट पढ़ के जाओगे. सो वैसा हम प्रिपरेशन करेंगे. जैसे व्हाट इफ ऐसा डिजास्टर आया, दैट डिपेंड्स स्टूडेंट्स. अभी ये कैसे प्रिपरेशन होगा, it will involve government officials, it will involve the governing bodies and बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एनवायरनमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, जो फोरकास्टिंग करते हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके इसके बारे में देखा जाएगा. एंड उस एरिया को कंसिडर किया जाए कि ये एरिया इज़ इट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, क्या इस एरिया में अर्थक्वेक का हिस्ट्री रहा है. सो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा. व्हाट इज़ रिडेम्पशन? रिडेम्पशन इज़ प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज. Okay, then preparedness. Preparedness means हम कितना prepared हैं. So a plan is chalked out so as to get the quick response from general public and administration. So एक प्लान बना लिया जाता है कि सपोज अभी हमारे यहाँ अर्थक्वेक की हिस्ट्री है, ऐसे सपोज उस गवर्निंग बॉडी ने बोला, सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि इस स्टेट में अर्थक्वेक का हिस्ट्री है, तो एक काम करते हैं, चलो अब से वी विल डिसाइड अ प्रोटोकॉल. जैसे ही अर्थक्वेक की कुछ भी हमको निशानियाँ दिखी तो पहला काम इमीडिएटली इस ऑफिस से ये बंदा ये ऑर्डर्स रिलीज़ करेगा, ये बॉडी के सारे पर्सन यहाँ पहुँच जाएंगे, आप लोग इस एरिया में पहुँच जाना बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा डैमेज होता है. समझ में आ रहा है. देन सिमिलरली टेलीफोन सर्विसेज, वाटर सप्लाई, सबको गाइडेंस दिया जाए कि इफ़ इन केस अर्थक्वेक आया तो आप ये इमीडिएटली करोगे, ये काम इमीडिएटली करना है, और इन कामों को थोड़ा दिन लगेगा तो भी चलेगा. सो दैट इज़ प्रिपेयर्डनेस स्टूडेंट्स. देन व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर पे आते हैं. सो मैनेजमेंट ये जज करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि अगर सपोज डिज़ास्टर आता है तो कितना कहाँ इम्पैक्ट करेगा. सपोज़ फ्लड आता है तो कहाँ से शुरुआत, हिस्ट्री कैसी रही है, कहाँ से फ्लड आता शुरू होता है, कौन से एरिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. सो सबसे पहले अपन उस एरिया को खाली कर देंगे. सो इस तरह से अपन प्रिपेयर होंगे इसके लिए. रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आई हैव पिक दिस डायरेक्टली फ्रॉम योर एसएससी टेक्स्ट बुक. सो वहाँ पे मिस्टेक है, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है स्पेलिंग में स्टूडेंट्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स टू द डिज़ास्टर. ओके, and that is given immediately after disaster, because disaster में if it is natural and if it is high intensity like flood, so जैसे flood आ रहा है आप जाके आप खड़े नहीं हो सकते कि चलो मैं flood को रोक दूंगा, है ना. so as and when it miles down आपको
उसका तैयारी करनी, उसका जवाब देना, उसके लिए काम करना शुरू कर देना है. सो दिस फैक्टर इज़ फॉलोड बाय द डिज़ास्टर स्ट्राइक इन द साइकिल. जैसे डिज़ास्टर स्ट्राइक करेगा उसके बाद इमीडिएटली बाद रिस्पॉन्स हमारा शुरू हो जाता है. रिसर्जेंस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, जहाँ पे रिजरेक्शन टाइप है, जहाँ पे हम फिर से खड़े हो रहे हैं. हमको चोट लग गई बट नाउ वी आर अगेन स्टैंडिंग अगेंस्ट the cruel behavior of nature. Again we will stand up and again we will try to bring our life back on track. Okay, and then this is restoration where actually it has happened. रिस्टोरेशन मतलब क्या, वापस से सब चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं, हमारा लाइफ वापस से शुरू हो गया. जैसे अभी आप देख रहे हो कोविड में धीरे धीरे पब्लिक आर गेटिंग प्रॉपर अवेयरनेस. अब किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मास्क पहनो, मास्क पहने से बोलने की, सब अपने आप मास्क पहन रहे हैं. एवरीवन इज़ फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हेंस वी आर सीइंग कि केसेस भी नीचे जा रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट लेट अस कम टू मैनेजमेंट अथॉरिटी. आफ्टर लुकिंग एट द मैनेजमेंट लेवल की हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेट अस सी कि मैनेजमेंट डिज़ास्टर का कौन कैसे करता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टीम विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, एंड वहाँ से डायरेक्शंस नीचे की तरफ आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए जाएंगे. तो जैसे कोविड का एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि बहुत बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए थे अकेले बैठ के कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को मेरा सपोर्ट रहेगा. स्टेट गवर्नमेंट्स के देन अलग से आप हर चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू आता था कि हाँ मोदी जी ने ये बोला है, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड बिकॉज ऑफ हेल्प विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. देन वहाँ से कहाँ बात चलती है, कलेक्टर के पास जाती है. सो एक एक जोन के जो कलेक्टर्स होते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट के, उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे. अगर आप मुंबई में हो तो उद्धव ठाकरे जी ने फिर उनको ऑर्डर्स दिए हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स को ऑर्डर जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉलो करवाइए प्लीज़. एंड वहाँ से तहसीलदार तालुका लेवल पे, और अगर विलेज लेवल पे जाए तो सरपंच के बाद ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाते हैं. सो नाउ ऐसा कुछ मैनेजमेंट, ऐसा कुछ डिसीजंस पर्कुलेट किए जाते हैं, स्प्रेड किए जाते हैं. एंड देन दीज पीपल विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इट, दे विल स्टार्ट giving their orders to this specific team which is going to handle this disaster in every manner possible. Now इन लोगों को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन से. फॉर एग्जांपल अब प्राइम मिनिस्टर को किसने बताया कि सर आप सोशल डिस्टेंसिंग चालू करवाओ, सर आप सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली करवाओ, सर आप हॉस्पिटल्स ठीक से मैनेज करो, सर आप ये दवाइयाँ लेना शुरू करवा दो अपने पेशेंट्स को. किसने बताया, ऑब्वियसली WHO ने. दे कैन बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना. विलेज लेवल पे डिज़ास्टर आने पे, नॉट ओनली कोविड, आप कोई भी डिज़ास्टर की बात करो तो विलेज की जो जनरल पब्लिक है उनका भी कभी कभी एक्सपीरियंस रहता है कि चलो ऐसा ऐसा है, फ्लड आ सकता है, तो सरपंच से डिस्कशन होगा कि अपन ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारा गाँव बच सकता है या उस पर कम प्रभाव पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मैनेज्ड. ऑलराइट, एंड देन आपके चैप्टर के एंड वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑन एमरजेंसी एक्शंस. सो उन्होंने बोला है कि आपको इमरजेंसी में टू अवॉइड अ मिसहैप, एज आई सेड कि वी कैन नॉट प्रिवेंट इट बट येस वी कैन डू सर्टन मेजर्स वी कैन टेक विच विल हेल्प अस in a way to prevent disaster, to avoid disaster. So उसके लिए क्या होते हैं, different signs are used students, as you can see on your screen. flammable liquid, flammable gas जिससे आग लग सकती है, explosives, जहाँ भी ऐसी चीज़ें रहती हैं तो ऐसे साइन बोर्ड भी वहाँ पे रहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ है और यहाँ पे हमको माचिस या ऐसे कुछ चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए वरना आग लग सकती है. सो दिस विल प्रिवेंट. अगर आपने इन साइंस को पहचान लिया देन श्योरली आप डिज़ास्टर होने से बचा सकते हो. अगर कोई और भी इंसान ऐसा कुछ वहाँ पे करा तो यू कैन स्टॉप हिम और हर अकॉर्डिंगली. सो दैट विल सेव यू. नेक्स्ट, व्हाट इफ डिज़ास्टर हैपन. सो आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो. सो वो भी आपके बुक में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, बट दे हैव नॉट डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल. दे हैव जस्ट गिवन यू दीज डायग्राम्स. आई हैव पिक्ड दिस diagrams straight away from your textbook, so you can see various methods of picking up the patients or the people who have been affected by disaster. These are different techniques, but again they have not discussed these techniques. उन्होंने 2-3 नाम ज़रूर mention किया, like cradle method, carrying on back, carrying on 2 hands. These are all different methods how people who have been impacted by the disaster can be handled. But again, I am not expecting any kind of answers or questions on these topics. This is just for your general knowledge. Yes, साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैस, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं. ठीक है, ओके. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स, जहाँ पे फर्स्ट एड एंड मॉक ड्रिल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. अगेन फर्स्ट एड के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको टेक्स्ट बुक में. ये टेबल दे हैव गिवन वेयर दे हैव मेंशन डिफरेंट आर्टिकल्स विच आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स.
फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स एंड वेरियस आर्टिकल्स विच आर वेरियस जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं बॉक्स में, वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं अगर मैं फर्स्ट एड बॉक्स खोलूँ तो उसके ऊपर एक टेबल आपको टेक्स्ट बुक में ज़रूर दिया है. यू कैन गो थ्रू दैट टेबल एंड मे बी they'll ask you question like match the column या give any 4 components, name any 4 components which I can find in a first aid box, or maybe which 4 components you will use if there is a cut by knife. ऐसा कुछ चीज़ें. डिज़ास्टर की बात हो रही है तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको डिज़ास्टर को रिलेट करके पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कहीं बॉम्ब ब्लास्ट सपोज हो गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, विच शुड नॉट हैपन एट ऑल, बट इफ़ इन केस ऐसा हो गया, सो फर्स्ट एड बॉक्स जो यूज़ किया जा रहा है उनमें से कौन से इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज़ होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं स्टूडेंट्स. सो दिस वुड बी जनरल नॉलेज बेस्ड, यू कैन आंसर देम अकॉर्डिंगली. कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. एंड देन मॉक ड्रिल के बारे में बोला कि यस, टू बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर स्टूडेंट्स, ऑलवेज मॉक ड्रिल इज डन बाय गवर्निंग बॉडीज. आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है ना. लाइफ में हम मॉक नहीं करते खुद के साथ अनलेस हमको बहुत टफ पेपर कुछ देना पड़े. जैसे मॉक होता है हमारे लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मॉक क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, राइट, जो चेतना क्लासेस वाले लेंगे आपके. नेक्स्ट, जो आर्मी वाले, नेवी वाले हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे करते हैं, इनका भी मॉक ड्रिल होता है ना. जो रेस्क्यू टीम रहती है इसका भी मॉक ड्रिल होता है कि व्हाट इफ़ अगर डिज़ास्टर आ गया तो कैसे करोगे, आप रेडी हो क्या, ये जानने के लिए मॉक ड्रिल करवाया जाता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि इंजन प्रिपेयर्ड रहे, है ना. जो अपने हेल्पर्स है, जो अपने रेस्क्यू वाले, जो अपनी टीम है, वो हमेशा रेडी रहे, फिट रहे. दे शुड नो ऑल दी नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, दे शुड नो ऑल दी एक्सरसाइजेज विच हैव टू बी डन, है ना. भाग के जाके पहले ये लेना है, फिर ये इक्विपमेंट हैंडल करना है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उनको आती रहे, वो अपडेटेड रहें. इस वजह से मॉक ड्रिल की जाती है. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, एज आई सेड हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं. दिस शुड बी within the specified interval of 30 minutes. So I've tried to give you an overview on this topic. This is very general topic but very important topic. So you just go through the chapter. If you have any doubts students, you can let us know. Okay, yes, do subscribe to our channel CATCH25 Science Academy, which holds all the videos, short videos, as I said in the introduction, also for you people just before exams. You can refer all those videos and you can do well in your exams. Thank you very much. Bye.